Miscellaneous exercise chapter number 9 question number 1. Find the values of k for which the line is parallel to x axis. हम सबसे पहले इस लाइन को y is equals to mx plus c की फॉर्म में लिख देते हैं so that हम m से कंपेयर करके स्लोप ऑफ द लाइन निकाल पाए. Got it? Equation of the given line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equals to 0. Right? Now we are going to take y to the other side and keep all this over here only. Right? So you will be getting 4 minus k square into y is equals to k minus 3 times of x plus k square minus 7k plus 6. Got it? Now dividing whole equation by 4 minus k ka whole square. So you will be getting y is equals to k minus 3x upon 4 minus k का whole square plus k square minus 7k plus 6 upon 4 minus k का होल स्क्वायर. सो अगर हम इस इक्वेशन को अब कंपेयर करेंगे y is equals to mx plus c से, we will be getting the slope. Right? So now comparing the equation with y is equals to mx plus c, we will be getting the slope of the given line which will be x ka coefficient, right? So this will be the slope. Therefore k minus 3 upon 4 minus k ka square is the slope of the line. Right? अब हमें k की वैल्यू निकालनी है. अब हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के. तो अगर हम यहाँ पे एक चार्ट भी बनाते हैं और x एक्सिस मतलब ये लाइन है, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्या बोल सकते हो, उस लाइन का जो स्लोप होता है मैम वो 0 होता है. सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ अ लाइन इज parallel to x axis, therefore slope of line will be equal to slope of x axis, and we know that slope of x axis is always equals to what, 0. So we can get that slope of line will also be equal to 0 as we are replacing this value over here. So in this equation only we will be getting slope of line is equals to 0. Now we can say that from 1 we also know कि उसका जो slope है वो ये भी हो सकता है. तो हम इसको और इसको equate कर देते हैं तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. So therefore k minus 3 upon 4 minus k square is equals to 0. K minus 3 is equals to 0. K is equals to 3. So therefore in the first part the value of k will be 3. Right? In the second case it is given as कि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के. मतलब अगर आपकी सपोज ये चार्ट, ठीक है, अगर y एक्सिस पे कुछ भी पैरेलल है मतलब ये लाइन है तो ये हमारी यहाँ पे क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री. राइट? और हमें पता है जो स्लोप ऑफ y एक्सिस होता है वो नॉट डिफाइंड होता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, इन सेकेंड पार्ट स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. और हमें फ्रॉम 1 वी ऑलरेडी नो दैट कि हमें स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है k minus 3 upon 4 minus k का स्क्वायर. सो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो जो स्लोप ऑफ y एक्सिस होगा वो बराबर होगा किसके, स्लोप ऑफ लाइन के. और हमें पता है कि जो नॉट डिफाइंड होता है वो कैसे लिखते हैं, 1/0. और स्लोप ऑफ लाइन हमें दे रखा है k minus 3 upon 4 minus k का स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप क्या आएगा, 4 minus k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. Got it? Now the third part it is given as कि हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है अगर ये वाली लाइन पास कर रही है ओरिजिन से. तो इसका मतलब अगर मैं x, y की वैल्यू 0,0 पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई करेगी ना इस इक्वेशन को. सो हम यहाँ पे 0,0 डालते हैं और k की वैल्यू निकाल लेंगे. Got it? So here we can write since the line passes through the origin, therefore it will satisfy 0,0. So now putting 0,0 in the given equation. Got it? K minus 3 into में 0 minus 4 minus k square into में 0 plus k square minus 7k plus 6 is equals to 0. So you will be getting
this as 0, this as 0, right? So therefore we can write k square minus 7k plus 6 is equals to 0. K square minus 6k minus k plus 6 is equals to 0. पहले k कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा k minus 6, फिर -1 कॉमन लोगे तो भी k minus 6 0 बचेगा. फिर आप बोल सकते हो k minus 1 is equals to 0, k plus 6 is equals to 0. So here you will be getting k is equals to 1 or k is equals to minus 6. Got it? This is how you are going to solve this question. Now moving on to question number 2. In the question it is given us find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respect. हमें बोला है कि हमारे पास ना दो लाइनें हैं, ठीक है. अब ये हमारा क्वाड्रेंट है, तो वो बोल रहा है कि सपोज वो दोनों लाइनें इंटरसेप्ट काटती है हमारे एक्सिस पे जिनके इंटरसेप्ट्स का जो सम है, सपोज वो एक्स एक्सिस पे ए काटती है और वाई पे बी. गॉट इट? एंड लेट दैट दिस बी दैट लाइन. गॉट इट? तो हम क्या बोल रहे हैं कि उनका जो सम है वो है 1 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है -6. तो हम पहले अपने क्वेश्चन में लिख देते हैं कि let the intercepts cut by the given line of x axis and y axis is A and B respectively. So from the question we can write उन दोनों का सम क्या है 1, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है -6. अब दो इक्वेशंस हमें पता है, हम क्या कर रहे हैं let this be equation 1 and अब हम क्या कर रहे हैं squaring equation 1 on both sides. So we will be getting a plus b का whole square is equals to 1 का square, a square plus b square plus 2ab is equals to 1, right? Let this be equation 2. So a square की वैल्यू नहीं पता, b square की वैल्यू नहीं पता 2 और ab की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं -6. So मैं यहाँ पे 2 into -6 is equals to 1 लिख रही हूँ और यहाँ लिख देती हूँ from equation number 2. Got it? तो a square plus b square plus -12 is equals to 1. a square plus b square is equals to 1 plus 12 will give you 30. Right? Let this be equation number 3. अब हमें पता है कि a minus b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a square plus b square minus 2ab के. राइट मैं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे ही रखती हूँ, खोलेंगे नहीं, ठीक है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू देख रही है हमने निकाली थी 13, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 13 लिख सकती हूँ -2 और ab की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी -6, तो मैं यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. हम ये कहाँ से लाया फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, राइट. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12. So a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, राइट. और अगर मैं अंडर रूट दोनों साइड कर दूं तो आपके पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू √25. सो a माइनस बी विल गिव यू +-5, राइट. तो अब इसमें दो केसेस बन जाएंगे. एक तो जब हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 है और एक हम ले लेते हैं इसके साथ ही पॉजिटिव वाला. एक बार रखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू -5. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आएगा 2a प्लस बी माइनस बी कट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6. सो a इज इक्वल्स टू 3. और अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 दैट विल गिव यू -2. तो या तो हमारा एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है a3 और b -2 हो, और दूसरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है अगर मैं इसको भी ऐड ही कर रही हूँ दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 विल गिव यू -4, a इज इक्वल्स टू -2. और अगर इसी की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर दूं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 में, तो -2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3. तो हमारे पास दो सेट ऑफ कॉम्बो आ गए. सो देयरफॉर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है ना, तो हम कैसे निकालेंगे. वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1. सो वी कैन से दैट x अपॉन a क्या है 3 upon y upon -2 is equals to 1. This can be written as x minus 3. X upon 3 minus y by 2 is equals to 1. This can be one equation. और दूसरी क्या हो सकती है x by -2 plus y by 3 is equals to
1. And this can also be written as minus x by 2 plus y by 3 is equals to 1. These are the equations of those lines. Got it? And if you want to solve it further, we can take LCM also and you can simplify it even more. Like 2x minus 3y is equals to 6 or minus 3x plus 2y is equals to 6. I hope this all is clear.